Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. So without further ado, let's get started with the top headlines of the day. Sara Ali Khan does deadlifts inside her vanity van. Arjun Kapoor reveals how it feels when half-sister Janhvi Kapoor calls him Bhaiya. Amitabh Bachchan's first look from Goodbye, co-starring Rashmika Mandanna, leaked on social media. Sanjay Leela Bhansali to make Inshallah with Hrithik Roshan and Alia Bhatt. Dead weight. Sara, just try. This is dead weight. Put me down. Dead weight. Sara, just try. This is dead weight. सारा को फिट रहने के लिए ना जिम की जरूरत है ना फैंसी वर्कआउट क्लोथ्स की। जरूरत है तो सिर्फ अपने दोस्त और अपने स्ट्रॉन्ग मसल्स की। सारा अली खान बॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और आउट ऑफ द बॉक्स पोस्ट की वजह से सारा सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है। The actor is awaiting the release of her next film अतरंगी रे, लेकिन in the meanwhile अपनी अतरंगी हरकतों से वो लोगों को खूब एंटरटेन कर रही है। आसाम में शूट करने के बाद सारा मुंबई लौट चुकी है और तुरंत अपने अगले शूट के सेट्स पे पहुंच गई है। एक स्टैंडिंग फोटो दे दो ना मैम। Sara, एक स्टैंडिंग। Thank you. Yeah, मैम। सारा ने अपने वैनिटी वैन से कई हिलेरियस बिहाइंड द सीन मोमेंट्स शेयर किए where she seems to be fooling around and having a great time with her team. वैसे तो सारा ने एक्टर बनने से पहले बहुत मेहनत करके अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया था, लेकिन अब वो कभी भी कहीं भी अपने आप को फिट रख सकती है। All she needs is to have her close friend nearby. जी हाँ, सारा ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो शेयर किया है जहाँ वो अपने फ्रेंड को उठा रही है, trying to replicate a workout from the gym called deadlifts. मल्टी कलर्ड मिनी ड्रेस और ब्राइट येलो फ्लैट्स में सारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। बट what really impressed us was how effortlessly she picked up her friend in her vanity van. सारा ने अपने लो कॉस्ट वेट ट्रेनिंग का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, डेड वेट और डेड लिफ्ट। She also added a powerlifting emoji. Sara, just try. This is dead weight. Looks like सारा अपने शूट के दौरान बहुत अच्छे मूड में थी because she also shared video clips of herself enjoying some cookies and fooling around with hilarious filters जिससे उन्होंने अपने चेहरे को किसी हॉरर फिल्म का लुक दिया। सारा को इतने एफर्टलेसली अपने फ्रेंड को उठाते हुए देखकर हम तो दंग रह गए। Looks like she is all set to become the fitness icon of her generation. सरो जी थोड़ा वेट। एक स्टैंडिंग फोटो दे दो ना मैम। Sara, एक स्टैंडिंग। Thank you. Yeah, मैम। क्या संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में ऋतिक रोशन अब प्ले करेंगे सलमान खान का रोल? क्या अपने शेल्फ प्रोजेक्ट को अब ऋतिक और आलिया के साथ रिवाइव करेंगे संजय लीला भंसाली? संजय लीला भंसाली ने हाल ही में डिलेड प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी को कंप्लीट किया है and it looks like the director producer is all set to start work on his next film. रूमर्स के मुताबिक संजय अपनी शेल्फ फिल्म इंशाअल्लाह पे दोबारा काम शुरू करने वाले हैं and this time वो ऋतिक रोशन से गुजारिश कर रहे हैं to be the leading man of this film. Salman's loss may be Hrithik's gain. After much hype around the announcement of Inshallah, जिसमें सलमान और आलिया co-stars होने वाले थे, the movie was shelved due to creative differences between Salman and Sanjay. लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी को फाइनली खत्म करने के बाद अब संजय अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करना चाहते हैं। While his reunion with Salman fizzled out, looks like he may end up working with Hrithik a second time if all goes well.
सुनने में आ रहा है कि संजय ने ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को इंशाल्लाह का लीड पेयर बनने के लिए अप्रोच किया है। Currently, Mr. Bhansali is supervising the pre-production of a web series हीरा मंडी, जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। But as a director, he has already moved on to his next project. एक सोर्स ने रिवील किया कि संजय ऑलरेडी ऋतिक के साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं। The actor has had several meetings with the filmmaker. He has liked the script but has requested for certain modifications. Bhansali is also reworking on the script. Inshallah reportedly एक mature love story है between an older man and a younger girl, which make Hrithik and Alia perfect for the film. फिलहाल तो ऋतिक फाइटर और विक्रम वेधा के साथ बिजी है एंड आलिया हैज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइंड अप फॉर फिल्मिंग एंड रिलीज। Even if they both agree to do this movie, shooting end of 2022 से पहले शुरू नहीं हो सकती, giving Mr. Bhansali plenty of time to work on the script. We are super excited to see this new pairing on screen. क्या आप भी आलिया और ऋतिक को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड है? What is Arjun Kapoor's take on Janhvi Kapoor calling him भैया? मैं ना बहुत रिलैक्स हो गई ये सोच के कि अर्जुन भैया है मेरे साथ। क्या वो इस बात से कंफर्टेबल है या फिर अभी भी दोनों के बीच है कुछ ऑकवर्डनेस? अर्जुन कपूर की 2 फिल्में साल OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है और उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्स और रिव्यूज मिले हैं। संदीप और पिंकी फरार एंड सरदार का ग्रैंडसन में तो बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद अर्जुन कपूर हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस अगेन। लेकिन एक वक्त था जब पर्सनली रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें एक फिल्म में कास्ट नहीं किया गया था। टेक अ लुक। अर्जुन कपूर बोनी कपूर के बड़े बेटे हैं। बोनी जी ने अर्जुन की मॉम से सेपरेट होकर श्रीदेवी से शादी की थी एंड दे वेंट ऑन टू हैव 2 daughters, जानवी एंड खुशी। मैम कभी थोड़ा सा मास्क निकाल के अपनी स्माइल तो बताओ। मास्क में ही आप मुस्कुराते हो। मैम यहाँ पे यही स्माइल का वेट कर रहे थे। दो अर्जुन ने पापा के साथ एक cordial relationship रखा था, he didn't have a very strong equation with Janhvi and Khushi till Sridevi's tragic demise 3 years ago. उस हादसे के बाद अर्जुन और उनकी बहन अंशुला ने जानवी और खुशी को unconditionally सपोर्ट किया and having lost their own mother, they understood कि उनकी बहनें किस दर्द से गुजर रही है। जानवी और खुशी अब अर्जुन को भैया कहकर बुलाती है, लेकिन the actor is not quite used to this word yet. Recently एक इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा कि आज भी उन्हें भैया सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। It sounds very strange. Anshula calls me bhai in a very different manner. And now this Arjun bhaiya is a very new thing. So when Janhvi says that, it sounds like very new to me. अर्जुन ने रिसेंटली एक इंटरैक्शन में ये भी रिवील किया that he had offered to play the role that eventually went to Fawad Khan in the movie Kapoor and Sons. Reportedly इस रोल को 6 लीडिंग एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था और उसी दौरान अर्जुन ने शकुन बत्रा को रिक्वेस्ट की थी कि वो रोल उन्हें दिया जाए। Not a lot of people know this, but I can confess this now here. I had called up Shakun Batra when Kapoor and Sons was stuck for a while and I had said I would want to do Kapoor and Sons. I would love to read and I feel I can play that role also. At that point of time, obviously Shakun didn't see the casting hitting the spot. Well, Arjun on screen ना सही, off screen आप Kapoor and Sons and Daughters का एक important हिस्सा है. So take heart and keep impressing us with your performances. रश्मिका जी
गुड बाय के सेट से रश्मिका मंदाना और अमिताभ बच्चन का फोटो हुआ लीक। रिवील हुआ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रश्मिका के ऑन स्क्रीन लुक्स। रश्मिका मंदाना को इंडिया का नेशनल क्रश माना जाता है and the bubbly actor is now gearing up to make her mark in Bollywood. रश्मिका सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है with the film Mission Majnu. But what is making headlines is her second film Goodbye, जिसमें वो दिखेंगी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और वेटरन एक्टर नीना गुप्ता के ऑपोजिट। रश्मिका मंदाना सदर्न फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना जलवा दिखा चुकी है एंड शी इज ऑल सेट नाउ टू कॉन्कर न्यू हाइट्स इन बॉलीवुड। रश्मिका ने मिशन मजनू को साइन करके बॉलीवुड में अपना डेब्यू अनाउंस किया था। बट व्हाट पीपल आर रियली एक्साइटेड अबाउट इज हर फिल्म गुड बाय ऑपोजिट अमिताभ बच्चन। हाल ही में गुड बाय के सेट से फोटोग्राफ लीक हुआ है, जहां रश्मिका और बिग बी डायरेक्टर के साथ एक शॉट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। While people are excited to see Rashmika and Amit G in the same frame together, इस लीक पिक्चर में अमित जी और रश्मिका के फर्स्ट लुक्स भी हमें देखने को मिले। Big B is seen dressed in a band gala and sporting a white stubble and graying hair. रश्मिका कैजुअल्स पहनी हुई है and it looks like the director is explaining the shot to them. अमित जी के साथ काम करने का मौका मिलना कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है and रश्मिका खुद इस बात को लेके बहुत एक्साइटेड है। गुड बाय के बारे में बात करते हुए रश्मिका ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें पहली बार पता चला that Mr. Bachchan was also a part of the film, उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। Initially, when I read the script, nobody told me anything about who was going to be cast beside me. I liked the script, and later I was told that Bachchan sir would be in the film, and I was like, wait, come again? What? Then the announcement happened, and I was like, okay, this is happening. While रश्मिका को बिग बी के साथ काम करने का मौका अपनी दूसरी फिल्म में ही मिल गया, नीना गुप्ता 39 इयर्स के करियर में पहली बार मिस्टर बच्चन के साथ काम करेंगी। नीना जी ने रिवील किया कि वो और रश्मिका अच्छे दोस्त बन गए हैं and that she is also very fond of Rashmika's little pet dog Aura, जो उनके साथ सेट्स पे आता है। नीना जी said, Rashmika is very cute. She's a sweet girl and also a good actor. On the first day itself, we became friends. Though she was a bit intimidated by Amit Ji initially, वक्त के साथ दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। Well, here's hoping कि Goodbye से रश्मिका का बॉलीवुड में अच्छा वेलकम हो and she only goes from strength to strength with each role. क्या नोरा फतेही बनेंगी एक अंडरकवर स्पाई अपकमिंग पेट्रियोटिक ड्रामा भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में? फिल्म का टीजर रिसेंटली रिलीज हुआ एंड मेनी नेटिजन्स आर एक्साइटेड टू सी नोरा इन अ ब्रांड न्यू अवतार। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है एंड इट लुक्स लाइक ये एक काफी ड्रामेटिक और हाई वोल्टेज इमोशन से भरी फिल्म होने वाली है। फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ नोरा फतेही भी दिखाई देंगी और व्यूअर्स उनके रोल को लेके काफी क्यूरियस है। Nora Fatehi is best known in Bollywood for her fabulous dance moves and her fab physique. She has now been a part of several movies and music videos as a dancer, but now it looks like she is ready to take on more challenging roles which will require her to show off her acting skills as well. भुज एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है and the movie which is set in 1971 will reportedly see Nora playing an undercover spy
हीना रहमान। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि जस्ट लाइक आलिया इन राजी, नोरा इस फिल्म में एक अंडरकवर एजेंट का रोल प्ले करेंगी। Nora will pose as a Notch girl in a neighboring country, but actually work for Indian intelligence agencies. नूरा जी, नूरा यहाँ पे सामने, एकदम सामने। नूरा मैम यहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रोल को कई एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो लीडिंग एक्टर सोनाक्षी सिन्हा से छोटा रोल प्ले नहीं करना चाहती थी। According to a source, while Sonakshi plays the main female lead, they needed another star to play the second lead. They had locked Pariniti Chopra, but she opted out after she realized that her role was smaller compared to Sonakshi's, and she didn't want to settle for less. That's also when the makers approached actresses like Kriti Sanon and Jacqueline Fernandez. Both didn't want to play second fiddle to Sonakshi. Then they locked Nora. ट्रेलर में नोरा काफी भारी डायलॉग बाजी करती हुई दिखाई दे रही है, and it seems to have scenes with Sanjay Dutt in the film. भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहां 1971 के वॉर के दौरान IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने वहां के गांव वालों की मदद से भुज एयरबेस को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया। The Air Force officer took help from 300 women, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने देश को जंग जीतने में मदद की। सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेठा का रोल प्ले करने वाली है। She was a real life social worker, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आर्म्ड फोर्सेस की मदद की। While Ajay Devgan plays the lead role of squadron leader Vijay Karnik, संजय दत्त रणछोड़ दास पागी का रोल ऐसे करेंगे, जिन्होंने रिपोर्टेडली अपनी कोशिशों से हजारों लोगों की जान बचाई थी। बहुत वक्त के बाद एक इमोशनली चार्ज्ड पेट्रियोटिक ड्रामा आ रहा है, and we can't wait to see this movie and its interesting characters. प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities, TV actors, hosts, content creators, influencers and media bloggers. So much so that some of these celebrities can give Bollywood superstars a run for their money. Here are 5 small screen celebrities who made headlines today. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 3 स्टारिंग शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस के प्लॉट ट्विस्ट ने फैंस को डाल दिया है कंफ्यूजन में। शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस की परफॉर्मेंस से फैंस बहुत इम्प्रेस्ड हैं, पर दोनों के बीच पहली वाली केमिस्ट्री मिसिंग नजर आ रही है। फोन चोरी करके मत भागना, मैं तेरे पीछे भागूंगी। You are there ना, I will run then. यहाँ से ऐसे चलान मार के मेरे फोन ले लूंगी। राखी सावंत अपने कैंडिड कमेंट्स और हंसमुख स्वभाव से सबको एंटरटेन रखती हैं। रिसेंटली जब राखी सावंत अपने एक फैन के साथ इंटरैक्ट कर रही थी, she brought a smile to her face with her response. जब फैन ने उनसे कहा कि वो राखी सावंत के बोल्ड नेचर की फैन है, राखी सावंत replied, Fan of you, very bold, very bold. है ना? Yes. किसी को तो बोल्ड होना चाहिए ना? Of course, of course. हाँ, वरना वो हमें बोल्ड बना देंगे। डेली सोप अनुपमा में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आफ्टर बीइंग इंस्टिगेटेड बाय हिज मदर-इन-लॉ राखी दवे, अनुपमा का बड़ा बेटा परितोष अपनी बीवी किंजल के साथ घर छोड़ने का फैसला करता है। सारे घर वाले इंक्लूडिंग हिज फादर इज अगेंस्ट इट, लेकिन परितोष और तोशु एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड फाइंड सपोर्ट फ्रॉम अनुपमा, जो उसके डिसीजन में उसका साथ देती है। क्या अब शाह परिवार धीरे धीरे टूट जाएगा? कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट। ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाला है हाई ड्रामा, क्योंकि रणबीर को फाइनली पता चल जाएगा कि सीरत उससे नहीं कार्तिक से प्यार करती है। रणबीर ओवरहियर्स अ वॉइस रिकॉर्डिंग सीरत हैज मेड और गुस्से में आके वो सीरत को कार्तिक के पास ले जाने का फैसला करता है। बट इन अ ट्विस्ट देयर कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट। क्या सीरत और रणबीर बच पाएंगे या फिर वक्त तीनों को किसी नए मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा? अली गोनी ने गुस्से में एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से एग्जिट कर दिया है। After his mother and sister were attacked and trolled by netizens, Ali Goni ने डिसाइड किया that he will quit the microblogging platform. अब उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन ने कई पोस्ट उसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं, saying कि वो और अली गोनी किसी भी तरह की नेगेटिविटी या टॉक्सिक कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। Jasmine Bhasin wrote, "I'm neither blaming anyone nor misunderstanding anyone. Just requesting you all to stay positive and calm. When we don't respond to toxicity, it dies itself. If you love me, you'll spread love. Just love."
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. But do not forget to tune in to our Zoom Facebook page where you will get all the updates of your favorite Bollywood celebrities round the clock. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But you guys, stay tuned and stay safe.